We are studying Canto 1, Chapter 6, Conversation between Narada Dev and Vyasadev. Narada Muni and Vyasadev, text number 23. We'll begin. Satse Vyadirgaya pi jatamai dridhamati het vadayam imam lokam gantamajjanatamasi Satche Vayadirakhyapi Jatmai Dridhamati Hitva Vadayam Imam Lokam Gantama Janatamasi Satse Vya Gyapi Jatamai Dridhamati Hitva Vadyam Imam Lokam Gantama Janatamasi Satse Vyadirgayapi Jatamai Dridhamati Hitva Vadyam Imam Lokam Gantamajjanatamasi. Akshay, read the shloka. अक्षय श्लोका पढ़ो. तत्सेवया दीर्घया पिपी यथामयि प्रथापति हितावया वयम् इमं लोकं गन्तामयजनतनमसि. Asta, read. सत्यवाय दीर्घयापि जातामयि धृतामति हित्वाद्यम् इमं लोकं गन्तमज्जनातम् अशि. Okay. Word to word meaning. Sat Sevaya, by service of the absolute truth, Adir Gaya, for some days, Api, even, Jata, having attained, Mai, onto me, Dridha, firm, Mati, intelligence, Hitwa, having given up, Avadyam, deplorable, Imam, this Lokam, material worlds, Gantha, going to, Madjanatam, my associates, Asi, become. Translation and purport by Srila Prabhupada, Jai Prabhupada. By service of the absolute truth, even for a few days, a devotee attains firm and fixed intelligence in me. Consequently, he goes on to become my associate in the transcendental world after giving up the present deplorable material world. क्या बोले? By service of the absolute truth, even for a few days, a devotee attains firm and fixed intelligence in me. देखिए भगवान ये कह रहे कि मेरे को जो सर्विस रेंडर करता even just for a few days, one attain the firm and fixed intelligence. There's it in 10th chapter of Bhagavad Gita, in 10th shloka, what Krishna says, Tesham satatam yuktanam bhajatam pritipurvakam dami buddhi yogam tam yenamam upiyanti. Those who are constantly engaged in my devotional service, to them I give the intelligence how to come to me. तो भगवान कहते हैं मैं उनको बुद्धि देता हूँ कि किस प्रकार वो मुझ तक आ सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे भी कृष्ण से दे अटेन द फर्म एंड फिक्स्ड इंटेलिजेंस इवन जस्ट टू रेंडर सर्विस फॉर फ्यू डेज. अगर आप अभी थोड़े समय के लिए भी आप सेवा करते हो कुछ दिनों के लिए, तब भी यू गेट द फर्म एंड फिक्स्ड इंटेलिजेंस. सो सम as it says, it's very difficult to control our mind. In Bhagavad Gita we study that there are senses, और इंद्रियों के ऊपर होती है हमारा मन, और मन के ऊपर होती है बुद्धि, और बुद्धि के ऊपर होती है आत्मा. ठीक है, मगर फिर भी हमारा जो मन है वो मनमानी करता है. ठीक है, क्या करता है वो? मनमानी करता है. ठीक है, इट्स लाइक अ मंकी. और मंकी मतलब मन की, मंकी मतलब मन की, जो मन की करे. That is like our mind is like that, मन की. ठीक है, so to control mind is like an on and off switch. If we have a stronger intelligence, we can control over the mind. क्योंकि जो बुद्धि है वो मन से क्या है, ऊपर है. तो यहाँ पे कृष्ण देयर इज फिक्स्ड इंटेलिजेंस. ठीक है, firm and fixed intelligence. So the key secret to control over the mind, to progress in devotional life, is rendering the service to the absolute truth. By that we can have the firm and fixed intelligence by which we can control over our uncontrolled mind also. So he says, consequently, he goes on to become my associate in the transcendental world after giving up the present deplorable material. तो भगवान कह रहे इस प्रकार से मेरे को सेवा करने से क्या होगा? He can become my associate in my abode. So we'll read the purport.
Serving the absolute truth means rendering service unto the absolute personality of Godhead under the direction of the bona fide spiritual master, who is a transparent medium between the Lord and the neophyte devotee. कि वो क्या लिखा है? Serving the absolute truth means rendering service unto the absolute personality of Godhead under the direction of the bona fide spiritual master, who is a transparent medium between the Lord and the neophyte devotee. किसकी अगर भगवान को हमें सेवा रेंडर करनी होती है तो अंडर हुज गाइडेंस वी डू दैट थिंग, अंडर द गाइडेंस ऑफ स्पिरिचुअल master who is a transparent via medium between Lord and the new bhakta or a new devotee. The neophyte devotee has no ability to approach the absolute personality of Godhead by the strength of his imperfect material senses, and therefore under the direction of spiritual master he is trained in transcendental service to the Lord. And by such training, even for some days, the neophyte devotee gets intelligence in such transcendental service, which leads him ultimately to get free from perpetual inhabitation in the material worlds and to be promoted to the transcendental world to become one of the liberated associates of the Lord in the kingdom of God. So a new bhakta, he got a training under the spiritual master. As his initiation is just a beginning. So beginning means हमारी शुरुआत होती है. So under the guidance of a spiritual master, we started up rendering service to the Krishna. हम लोग भगवान कृष्ण को सेवा अर्पण करना शुरू कर देते हैं. We started our devotional service. And if we keep going on rendering this devotional transcendental service, our intelligence, we get the higher intelligence. And by that, if we keep on doing that thing, we get promoted to the transcendental world. From this material world से हम कहाँ promote हो जाते हैं? आध्यात्मिक जगत में. And there we become one of the associates of Lord in the kingdom of God. हाँ तो वहीं से ना और वहीं जाके फिर हम दास बनते हैं. I'll read the next shloka. मतिर्मयि निबद्धयं नाविपद्येत कर्हिचित् प्रजासर्गा निरोधेऽपि स्मृतिश्च मद अनुग्रहात्. Translation. Intelligence engaged in my devotion cannot be thwarted at any time, even at the time of creation, as well as at the time of annihilation. Your remembrance will continue by my mercy. क्या लिखा है? Intelligence engaged in my devotion cannot be thwarted at any time. कि जो बुद्धि, जो इंटेलिजेंस मेरी डिवोशन में एंगेज होती है वो कभी भी खराब नहीं हो सकती. कभी कहते हैं ना मति मारी जाती है, ये मति बिगड़ जाती है, वो तब होती है जब हम माया में होते हैं, माया के अधीन होते हैं. मगर जब हम भगवान की शरण में होते हैं तब बुद्धि कहीं विनाश नहीं होती. Even at the time of creation as well as at the time of annihilation, your remembrance will continue by my mercy. So उससे क्या होता है? जो भगवान की सेवा में फिक्स रहते हैं, डिवोशन में फिक्स रहते हैं, at the time of creation or at the time of annihilation, they always have the remembrance of Krishna by his mercy. कि भगवान की कृपा से उनकी जो remembrance है वो रहती है. ठीक. This is the greatest boon actually when Dhruva, जब ध्रुव महाराज को 36,000 साल यहाँ भौतिक जगत में रहना पड़ा था, because he had the desire to have the kingdom greater than his father. Though उन्होंने भगवान कृष्ण को कहा था कि it's just a piece of glass, I don't want Krishna, but Krishna says नहीं, कहीं तो इच्छा की थी तो उनको देते हैं. तो कहते हैं now help me कि मैं कभी माया में न फंस जाऊं, always remember your lotus feet. So that's how Dhruva Maharaj stayed in material world. कि अगर नहीं हो तो मतलब देखिए, अगर हमें भगवान की शरणागति remembrance ना हो, we fall into Maya. Immediately we fall into the Maya. So it's a very great fortune and the mercy of Lord if we're not able to forget him. So Chaitanya Mahaprabhu says, always remember Krishna, never forget Krishna. So always remember Krishna is possible only by Lord's mercy, and Lord's mercy we can attract only by devotional service. ठीक है. So तात्पर्य में लिखा है, devotional service rendered to the personality of Godhead never goes in vain. Since the personality of Godhead is eternal, intelligence applied in his service or anything done in its relation is also permanent. In the Bhagavad Gita, it is said that such transcendental service rendered onto the Supreme Personality of Godhead accumulates birth after birth. And when the devotee is fully mature, the total service counted together makes him eligible to enter into the association of the Personality of Godhead. Such accumulation of God's service is never vanquished, but increases till fully matured. क्या लिखा है? Devotional service rendered to the Personality of Godhead never goes in vain. Since the Personality of Godhead is eternal, intelligence applied in his service or anything done in his relation is also permanent. क्योंकि जो भगवान है वो eternal है, तो चाहे वो बुद्धि हो, चाहे कुछ भी चीज हम लोग उनके लिए लगाते हैं तो वो परमानेंट होती है. इन भगवद गीता
Our devotional service is permanent. It is not temporary. देखिए अगर आप 1% भी प्रगति करते हो तो 1% आपके साथ ही रहने वाला है, ये नहीं कि वो खत्म हो जाता है, खाता नहीं, ऐसा नहीं होता. So in the Bhagavad Gita it is said that such transcendental service rendered onto the personality of Godhead. Hare Krishna Pooja Mataji, what happened? You got late. So Bhagavad Gita में लिखा है, it is said it's a transcendental service rendered unto personality of Godhead, accumulate birth after birth, and when the devotee is fully matured, the total service counted together makes him eligible to enter into the association of personality of Godhead. तो maturity की stage क्या लिखा है, मतलब ये कहने का मतलब है यहाँ पे कि देखिए जो हम भक्ति करते हैं, अगर if you're not able to attain perfection in this lifetime, still there is no loss. आपने जितनी भी प्रगति की है वो आपके साथ ही रहेगी, चाहे वो 1% है, 2% है, 3% है, it remains with you. ठीक है, वो आपके साथ में रहती है. And what happens even if you're not able to attain perfection in this lifetime, the devotional service you can, whenever you continue resume the devotional service, you will start from the very point where you left. तो जब भी आप next time you started up devotional service, so आपने जहाँ छोड़ी थी आप वहीं से resume करोगे. So like that way. But देखिए बुद्धिमत्ता वही है कि एक ही जन्म में इसको खत्म किया जाए, because you might like not attain perfection in this life, might you ended up getting into some different body जहाँ पे इतनी सुविधा ना हो भक्ति, मतलब पता नहीं है ना हम लोग कितना उसको ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, कब ले पाएंगे. सो बेटर टू फिनिश अप द बिजनेस इन वन लाइफ टाइम. ठीक है, वी डोंट, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि 1% चलो इस जन्म में 1%, फिर 2%, ऐसा नहीं होता. तो दैट टेक्स टाइम, सो बेटर फिनिश अप द बिजनेस इन दिस लाइफ टाइम. ओके, मगर ये है कि मगर आप इतना भी डिसहार्टन मत हो जाइए कि अगर मैं नहीं अटेन कर पाया तो क्या होगा, नुकसान कुछ भी नहीं है. गेन इज सो मच, लॉस इज नथिंग. बिकॉज अगर आप परफेक्शन नहीं भी अटेन कर पाए, स्टिल वो जो आपका भक्ति का अकाउंट है वो परमानेंट है, वो कभी खाली नहीं होता. तो जितना आपने सेवा की वो आपके साथ में रहती है. तो इस प्रकार से सेवा करते हुए दोज हु बिकम फुली मैच्योर, मतलब पूर्णतः भगवान को शरणागत हो जाते हैं और पूर्ण परफेक्शन अटेन करते हैं, then they become eligible to enter into the association of supreme personality of Godhead. Such accumulation of God's service is never vanquished but increases till fully matured. तो ऐसी जो सेवा है भगवान की वो कभी खत्म नहीं होती, वो हमेशा इंक्रीज करती है, करती ही रहती है. ठीक है, we'll move further. एतावत् उक्त्वा पररमा तन्महाद्भुतं नभोलिङ्गमलिङ्गमीश्वरम् अहं च तस्मै महतं महीयसे कृष्णावनामं विदधेऽनुकम्पितः. Then the supreme authority, personified by sound and unseen by eyes, but most wonderful, stopped speaking. Feeling a sense of gratitude, I offered up my obeisances unto him, bowing my head. तो नारद मुनि को दर्शन नहीं हुए थे. दूसरी बात, उन्होंने क्या है, भगवान की कृपा से ही उनके वो आवाज सुन पाए थे. ठीक है, and it says unseen by eyes, but then after the things he stopped speaking to Narada Muni, and Narada Muni felt sense of gratitude and offered his obeisances to Narada Muni. यहाँ लिखा है that the personality of Godhead was not seen but only heard does not make any difference. भगवान को देखना सुनना अंतर नहीं है. ठीक है, the personality of Godhead produced the four Vedas by his breathing and he seen and realized through the transcendental sound of the Vedas. तो भगवान कहते हैं I am the compiler of the Vedas. तो वेदा जो है भगवान की सांस ब्रीदिंग से बनते हैं, produced from the breathing of the Lord, and he seen realized through the transcendental sound of the Vedas. So the Vedas की sound, transcendental sound हम सुन सकते हैं, भगवान को देख सकते हैं. जैसे हरे कृष्ण महामंत्र है, ठीक है, it's a sound vibration. So when we chant the holy names, we feel the presence of Krishna because Krishna and his name is not different. So when we chant, we can feel the presence of Krishna. Similarly, the Bhagavad Gita is the sound representation of the Lord. जैसे जो भगवद गीता है, जब हम शाम के समय पढ़ते हैं, सॉन्ग ऑफ लॉर्ड, जैसे भगवान का गीत है, तो भगवान द्वारा बोला गया है. So it's the sound representation of the Lord, and there is no difference in identity. The conclusion is that the Lord can be seen and heard by persistent chanting of the transcendental sound. Conclusion क्या है, भगवान को हम देख और सुन सकते हैं केवल ध्यान पूर्वक जप से या chanting हम लोगों ने किया, so we can hear and see the Lord. So this is the beauty of this chanting of the holy names. If you really want to perceive Lord, so chant attentively and hear attentively. Okay, we'll move further.
नमानि अनन्तस्य तत्र पापथान् गुह्यानि भद्राणि कीर्तानि च स्मरन् गं पर्यातमस्तुष्टमनागता स्पृहा कलं प्रतीक्षन् विमदो विमत्सरः. Thus I began chanting the holy name and fame of the Lord by repeated recitation, ignoring all the formalities of the material world. क्या बोला? तो इस तरह से मैंने भगवान का हरि नाम लेना शुरू किया. रिपीटेड रिसाइटेशन. देखिए हम भी तो रिपीट करते हैं ना इस मंत्र को. 16 बार महामंत्र को जब करते हैं हम लोग 108 रिपीटिशन होता है एक माला में. तो इस तरह से 1728 बार हम रिपीट करते हैं मतलब भगवान का नाम हरे कृष्णा इस तरह से. सो जैसे जो महामंत्र है कितने 1728 महामंत्र हम जब करते हैं तो एक दिन में 16 माला के अनुसार. सो इग्नोरिंग ऑल द फॉर्मेलिटीज ऑफ मटेरियल वर्ल्ड. कह रहा है ये भौतिक जगह के जो भी ऑब्लिगेशन फॉर्मेलिटी उनको छोड़ छाड़ के चैंटेड बिगिन टू चैंट. So chanting and remembering of transcendental pastimes of the Lord are benedictory. So doing I traveled all over the earth fully satisfied, humble and unwearied. So ये हरि नाम का ही एक फलश्रुति है कि इंसान जो है वो पूरी तरह संतुष्ट, humble और नॉन एनवियस बन जाता है. ठीक है. And this remembering and chanting the Lord's pastime is the greatest benediction because it free one from the anxieties of material world. तो जो हमारी anxieties होती हैं इन सबसे हमें वो free करता है. And because it helps us to situate on our own original position. So this is the benedictory to chant the holy names of the Lord. So it says further, the life of a sincere devotee of the Lord is thus explained in a nutshell by Narada Muni by his personal example. Such a devotee, after his initiation by the Lord or his bona fide representative, takes very seriously chanting of the glories of the Lord and traveling all over the world so that others may also hear the glories of the Lord. क्या बोला है? जो ऐसे शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के, ठीक है, वो अपने उदाहरण देखिए यहाँ पे खुद ही सेट कर रहे हैं कि दीक्षा के बाद में he take up this chanting of the glories of the Lord very seriously and travel all over the world to ताकि जो बाकी दुनिया है वो भी इस हरि नाम को सुन सके. देखिए जब हम भक्ति में आते हैं नए नए हम लोग बहुत आनंद अनुभव करते हैं. हमें कई चीजें पता चलती है कि बस यही सार है और तो सभी बेकार है. कि हरि नाम ही हमें करना चाहिए. इसी से सभी जीवात्माओं का उद्धार हो सकता है. जीव दया कृष्ण नाम. ठीक है. जीव दया कृष्ण नाम कि जीव पे जब दया होती है तो उनको कृष्ण नाम हमें देना चाहिए. सो कंपैशन इट अराउजेस बाय द चैंटिंग ऑफ द होली नेम. सो कंपैशन मतलब हम जब प्रचार करते हैं भगवान को इन हरि नाम की महिमा बताते हैं भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं. वो एक्स्ट्रा कृपा मिलती है बिकॉज वी आर ट्राइंग टू टेक वन सोल बैक टू गॉड. क्योंकि हम उस आत्मा को जिसको हम प्रचार करते हैं हम प्रयास कर रहे हैं कि ये आत्मा भी भगवान तक सीखे बिकॉज लॉर्ड वांटेड दैट एवरी जीवन शुड कम टू हिम. बट आई थिंक इज वी रिमेन in a sightseeing. हम लोग sightseeing में रहते हैं. We are not focused enough, like seeing like resolute on the path. So that's why we are many branch. हम लोग एक branch से दूसरी branch में jump लगाते रहते हैं भौतिक जगत की अपने इंद्र तृप्ति के लिए. But if we remain focused, so what happens? We chant nicely, we reach nicely, and we take up many and we help other souls also to go back to God. So that way we get the special mercy of the Lord. So devotee have no desire for material gain. तो जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको भौतिक जगत से कोई इतना चीजें नहीं चाहिए. ठीक है. दे आर कंडक्टेड बाय वन सिंगल डिजायर टू गो बैक टू गॉड हेड. तो उनकी एक ही इच्छा होती है और एक ही इच्छा होती है और एक ही इच्छा होती है वो है भगवत धाम जाने की. दिस अवेट्स देम इन ड्यू कोर्स ऑन क्विटिंग द मटेरियल बॉडी. तो ऐसा कब असंभव होता है जब वो इस शरीर त्यागते हैं. जैसे मैंने बोला था कि डेथ इज एन स्टेपिंग स्टोन टू गो टू बैक टू गॉड हेड फॉर द डिवोटीज. उनके लिए स्टेपिंग स्टोन होता है. पैर रखा और चल पड़े तो भगवत धाम. तो ऐसा होता है. Because they have the highest aim of life going back to Godhead, they are never envious of anyone. क्योंकि देखिए मैंने बोला उनका higher purpose है तो किसी से द्वेष ही नहीं है. Nor are they proud of being eligible to go back to Godhead. ना तो उनको गर्व होता है कि भाई देख मैं ही भगवत धाम जा सकता हूँ और कोई नहीं जा सकता. नहीं, ऐसा कोई गर्व भी नहीं है हमें. They are the humble servant of Lord. Their only business is to chant and remember the holy name, fame, and pastimes of the Lord, and according to personal capacity, to distribute the message for others' welfare without motive of material gain. So जिसका जितना भाव जितना बन पाता है उसके हिसाब से वो प्रचार करता है. ठीक है. अब जैसे कोई अगर लेक्चर नहीं प्रीच कर सकता तो प्रसाद बना के प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करे वो भी प्रचार है. ठीक है. कोई कीर्तन करे वो सुनाए किसी को वो भी प्रचार है. तो किसी को कोई पुस्तक वितरण कर दे वो भी प्रचार है.
तो किसी भी तरीके से प्रचार हो सकता है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप व्यास आसन में बैठे और लेक्चर दें। नहीं, अगर आपको नहीं बोलना तो कोई बात नहीं, आप किसी को पुस्तक दे दीजिए, प्रसाद खिला दीजिए, कीर्तन के लिए इनवाइट कीजिए। सो दैट यू आल्सो डू हेल्पिंग अदर, अपनी कैपेसिटी के अनुसार प्रचार करते हैं। और जब होता है, जैसे हमने भगवत गीता में पढ़ा था, सत्यम कीर्तयन्तो मम, so we have 24/7 chant the glories of the Lord. So 24/7 means molding our activities in such a way, ठीक है, 24 घंटे माना लेके तो कोई भी नहीं बैठ सकता कलयुग में, क्योंकि हमारा मन बहुत चंचल और हमारे पास और भी बहुत सारे कार्य थे, परमहंस तो हम है नहीं। मगर प्रयास किया जा सकता है कि ज्यादा से ज्यादा जो हमारी एक्टिविटीज हैं वो क्या हो, कृष्ण भावनामृत हो। तो ज्यादा से ज्यादा जब हम कृष्ण भावनामृत होते हैं, so the more we are Krishna conscious, the more we are able to get rid of this material existence, तो उतना ही ज्यादा हमारी प्रगति होती है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है विदाउट मोटिव। सो विदाउट मोटिव, जैसे बोला कि शुद्ध भक्ति जो होती है वो टिंज नहीं होती किसी भी भौतिक इच्छा के हिसाब से कि ये इच्छा है तो वो इच्छा है, नहीं, कोई इच्छा नहीं होती है हमारे पास व्हेन वी आर फुली एंगेज इन दी प्योर डिवोशन। जब हम शुद्ध भक्ति में होते हैं तो फिर हमारे पास कोई भौतिक इच्छा नहीं होती। ठीक है, there is no any material desires, that is pure devotion. Otherwise if you are carrying some motives, so that's like a mixed karma में शुद्ध भक्ति होती है और उसका फिर इतना लाभ नहीं होता। तो शुद्ध भक्ति करनी है और दूसरों को भी इसका प्रचार करना है, that's how we will progress. ठीक है, we'll move to the next verse. इवां कृष्णामतेर्भमन् नष्कत्तश्यामलात्मना कला प्रद्रुभयोत्कले कदित्सुधा मनीयतः। And so Brahmana Vyasadeva, in due course of time, I, who was fully absorbed in thinking of Krishna, and who therefore had no attachment, being completely freed from all material taint, met with death, as lightning and illumination occur simultaneously. क्या लिखा है? O Brahman Vyasadeva, in due course of time, I, Narad Muni कह रहे कि मैं, who was fully absorbed in thinking of Krishna, who therefore had no attachment, being completely freed from all material taint, met with death. तो इस तरह से जो मेरा पुराना जीवन है, जो वो मेड सर्वेंट के पुत्र थे, तो उनका इस तरह से जो है जीवन का अंत होता है। कैसे? हरि नाम करते हुए, ठीक है, भगवान का गुणगान करते हुए, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हुए। ही वाज टोटली फिक्स्ड अप, कोई भौतिक आसक्तियां नहीं थी, कंप्लीटली फ्री फ्रॉम मटेरियल पेन। दैट्स हाउ ही लेफ्ट हिज बॉडी एज लाइटनिंग एंड इल्यूमिनेशन अकर सिमिलटेनियसली। जैसे बिजली चमकती है या वैसा होता है, उसी प्रकार से बताया। यहाँ पे तात्पर्य प्रपद बताया है, टू बी फुली अब्सॉर्ब्ड इन द थॉट ऑफ कृष्णा मींस क्लियरेंस ऑफ मटेरियल डर्ट्स ऑफ हैंकरिंग। पूर्णतः भगवान कृष्ण पर मेडिटेट करना, उनपे मगन रहना, उनपे उनकी लीलाओं का स्मरण करना कब पॉसिबल है? जब हमारे पास when we are free from all material dirts or hankerings. As a very rich man has no hankering for small petty things, so also devotee of Lord Krishna, who is guaranteed to pass on to the kingdom of God, where life is eternal, fully cognizant and blissful, naturally has no hankering for petty material things which are like dolls or shadows of the reality and are without permanent value. तो देखिए, अब कोई एक गरीब अमीर घराने का बच्चा है, वो छोटी बड़ी चीजों के पीछे क्यों भागेगा? He will be having everything high branded, high quality, very nice stuff, everything. You don't bother for small things. Similarly, जो भक्त होते हैं उनके पास एक बड़ा गोल है, भगवत धाम जाने का, आनंद वाला। तो इसलिए, और उनको पता है वहां सब कुछ परमानेंट है, तो भौतिक जगत की जो ये टेम्परेरी चीजें उनके प्रति आकर्षित नहीं होते, जो कि एक शेडो या रियलिटी नहीं, मतलब एक शेडो की तरह होता है, that gives a temporary benefit, not permanent. So they are not interested. So that is the sign of spiritually enriched person. For in due course of time, when a pure devotee is completely prepared, all of a sudden a change of body occurs, which is commonly called death. This because शुद्ध भक्त जब पूरी तरह free हो जाता है, completely prepared, pure devotee is completely prepared through the devotion practices. When met death, शरीर का चेंज करना डेथ कहा जाता है। शरीर का त्याग क्या करके वो एक आध्यात्मिक शरीर उसको मिलता है, गोइंग बैक टू गॉडेड। सो इट सेज फॉर प्योर डिवोटी such a change takes place exactly like lightning and illumination follows simultaneously. ठीक है, that is to say a devotee simultaneously changes material body and develop a spiritual body by the will of the supreme lord. तो अपने भौतिक शरीर त्यागता है और आध्यात्मिक शरीर को धारण करता है। Even before death, a pure devotee has no material affection due to his body being spiritualized like a red hot iron in contact with fire. तो इवन मृत्यु से पहले भी जो भक्त होता है उसको मटेरियल अफेक्शन नहीं होता, ड्यू टू हिज बॉडी बीइंग स्पिरिचुअलाइज्ड लाइक अ रेड हॉट आयरन इन कांटेक्ट विद फायर।
जैसे एक जो लोहा है अग्नि के संपर्क में रखा जाए तो कुछ समय बाद अग्नि की तरह ही व्यवहार करना शुरू कर देता है। तो उसी प्रकार से शुद्ध भक्त है, क्योंकि वो भगवान जो ट्रांसेंडेंटल है उनके संपर्क में जाते हैं तो खुद भी दिव्य हो जाते हैं। So then they are totally spiritualized, as the iron transformed into the fire. Similarly, the jiva transformed into transcendental being in a material world, who is above the three modes of material nature. से केवल भक्ति करने से. So that's how they transcend the modes. So I'll stop here for the time being, and I'll look up because it's 8:35. So any of you having any questions or comments, so I will take up. और किसी को कुछ शेयर करना तो कर सकते हैं। तो इसका एक पॉइंट यहाँ पे देखो कि जैसे नारद मुनि अपने पिछले जन्म मेड सर्वेंट थे, देखिए कोई हाई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए अभी तक जो हम सो फार वी कैन लर्न कि फॉर टू स्टार्ट अ भक्ति यू नीड नॉट टू हैव द हायर बर्थ, कि एक हायर बर्थ हो, आप अमीर घराने से हो या ऐसा हो, कोई भी भक्ति कर सकता है। नारद मुनि वाज जस्ट सन ऑफ अ मेड सर्वेंट, तो वो कोई भी भक्ति कर सकता है। और कहते हैं और भक्ति में तीव्रता से प्रगति करने का एक ही तरीका है, वो है वैष्णवों की सेवा करना। ये हम लोगों ने नारद मुनि का भी देखा कि जैसे वो साधुओं का उत्तिष्ठ पाते थे, उनकी सेवा करते थे, तो उस तरीके से। और एक और चीज हम लोगों ने देखी कि जब जो भक्त होता है वो सिंसियर होता है, प्रयास करना चाहता है, तो भगवान उसके रास्ते में अगर कोई ऑब्लिगेशन ऑब्स्टेकल आता है तो भगवान उसको हटा देते हैं। जैसे नारद मुनि थे, ही वाज टोटली डिपेंडेंट ऑन द मदर बिकॉज ही वाज चाइल्ड एंड मदर वाज आल्सो डिपेंडेंट ऑन द सन। सो नारद मुनि उनको कभी छोड़ के नहीं जाते थे क्योंकि वो अकेले थे, अकेले पुत्र थे, उनकी माँ विडो थी। तो क्या हुआ, बाय द विल ऑफ प्रोविडेंस द मदर गॉट अ स्नेक बाइट एंड शी डाइड। नाउ नारद इज ऑल एट ओन, खुद है वो, कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ही टुक दैट अपॉर्चुनिटी। अब भौतिक जगत वाले लोग रोना ही शुरू कर दे, अरे एक सहारा था वो भी ले गए, मगर जो भक्त होता है वो हर चीज में अपॉर्चुनिटी देखते हैं, नाउ हाउ आई कैन बिकम मोर कृष्ण कॉन्शियस। सो इसी नाउ आई हैव नो ऑब्लिगेशन, मेरे पास कोई ऑब्लिगेशन है, मैं अकेला हूँ, आराम से भक्ति कर सकता हूँ। सो ही टुक अप, और उन्होंने प्रोसेस स्टार्टअप किया दैट ही हैड लर्नड फ्रॉम द साधु। अब जो भी प्रोसेस है देखिए, आत्म साक्षात्कार का खुद कंकॉटेड नहीं होता, जो हम अपने आचार्य गुरु से सीखते हैं उसके हिसाब से हमें शास्त्र में जो मेंशन है उसके हिसाब से हमें प्रोसेस स्टार्ट करना चाहिए, देन दैट इज अ बेनिफिशियल, और उसको एज इट इज फॉलो करना जैसे हमें गुरु कहते हैं, सो दैट वी कैन प्रोग्रेस। और इस तरीके से नारद मुनि ने प्रॉपरली फॉलो किया, chanting and spreading the glories of the holy name throughout the world। मतलब जहां जहां भी वो जाते थे भारतवर्ष में, जहाँ सफर करते थे, हर जगह पे गुणगान करती है। वैष्णव का एक गुण है, आप कह सकते हैं कि wherever they are constantly remembering and chanting the holy names of the Lord, and wherever they are, the people they meet, करो कृष्ण, कहो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा, these three things goes along with them। वो हमेशा उनके साथ में रहती है, जो भी मिलता है उसको भक्त बना देते हैं। इस तरीके से विचार करते हुए और प्रसादम लेते हैं। और आज का जैसे थिंग था कि इवन आप इफ वन गोज लाइक दैट चैंटिंग and hearing the glories of the Lord whole time, so at the time of death it becomes very easy for him to he is never into the forgetfulness of Krishna, the remembrance of Krishna is always there। So it's like he left the body and get into the transcendental spiritual body and go to back to God at the permanent place। So far this is what we can conclude from all the past time till now। So अभी तक किसी का कोई प्रश्न है तो कोई कुछ है तो कोई बोल सकता है। Yes, would like to hear from all of you। हाँ जी, किसी को कुछ कहना है, कोई प्रश्न है किसी का? क्वेश्चन है माता जी। Yes, ask the mother, please be little loud। माता जी हम जैसे देख रहे हैं ना, अभी तो नारद मुनि का प्रीवियस लाइफ का चीज चल रहा था कि मेड सर्वेंट, उसके बाद वो ब्रह्मा जी के पुत्र हुए, राइट? ब्रह्मा जी के पुत्र मींस क्रिएशन तो वहीं से है ना, हम भी तो ब्रह्मा जी से ही आ रहे हैं। हाँ वही। सो मतलब मैं वही पूछना था, मतलब ब्रह्मा जी की क्रिएशन के बाद ये मतलब जैसे प्रीवियस बर्थ भी हो गया तो हाँ, तो वो एनिहिलेशन के बाद वापस क्रिएशन से हुआ, मतलब इन द सेंस आई एम आस्किंग लाइक जो उनका मतलब वापस से बर्थ हुआ ब्रह्मा जी से, सो वो एनिहिलेशन के बाद जब एनिहिलेशन हो गया वापस से जब क्रिएट हुआ तब फिर वापस वैसे हुआ ना? तो क्रिएशन से and he is a like liberated soul। Narada Muni is a liberated soul, so he can go to spiritual world also anytime। Yeah, this is the effect, this is because of his devotional service in the previous birth, जिसकी वजह से he is a great spiritual master also, who had the disciples like Dhruva Maharaj and Prahlad Maharaj। So that yes, व्यासदेव जी भी। yeah,
हाँ यस, व्यासदेव ऑल्सो, हूँ जो Yeah. जिनकी कृपा से आज हम भागवतम पढ़ रहे हैं हम लोग। हाँ जी, और कुछ कहना है किसी को? यस, एनी फर्दर क्वेश्चंस? और किसी का कोई प्रश्न है और एनीथिंग टू शेयर अबाउट? कोई कुछ शेयर करना चाहे? सॉरी, yesterday I wasn't able to take class in the evening time. Yes, Akshay, you wanted to say something? एक थोड़ा अजीब क्वेश्चन है। Yeah. मतलब लास्ट क्लास में, सैटरडे वाले क्लास में, प्रभु जी के क्लास में हमने एक चीज तो पढ़ी थी कि हम कृष्णा को डायरेक्टली सर्व तो नहीं कर सकते। Yes, we cannot. तो अगर हम कृष्णा को डायरेक्टली सर्व नहीं कर सकते तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, जो कि है कि हम उनके डिवोटीज को सर्व करें। DT से और serve करना है, yes. उनको डिवोटी One second, Akshay. Please try to be little loud because ये लैपटॉप का इतना साउंड नहीं है. You have to be little loud so that I can hear. You're saying if you can direct stuff, so it's through the DT worship. एक मिनट, ईयरफोन्स लगा लेता हूँ। No, it's okay. Now sound is coming. You can continue. अब अच्छा है। हाँ ठीक है, थोड़ा I can make it good. Okay. Complete your तो question. मुझे ये कहना है कि हमने, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हम डायरेक्टली कृष्णा को सर्व तो नहीं कर सकते, तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम उनके डिवोटीज को डायरेक्टली सर्व करके हम अपनी सर्विस उनके माध्यम से कृष्णा तक पहुंचा सकते हैं। Yes, perfect So that was the understanding. point. तो अगर ऐसा है तो क्या हमें जरूरत है डीटी वर्शिप डायरेक्टली करने की, क्योंकि इनडायरेक्टली कृष्णा तो वो एक्सेप्ट करेंगे नहीं। हम लोग डायरेक्टली डीटी वर्शिप नहीं करते हैं. We do it through the transfer via medium of our spiritual master. We get training under him. We become qualified to do the DT worship under him, and then we engage in the DT worship. देखिए, जो DT worship करने के लिए जैसे ब्राह्मण दीक्षा स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो वो हम लोग ट्रेनिंग तो किसके अंदर लेते हैं? We do that under the direction of our spiritual master. वो उन्हीं के अधीन में रह के सब कुछ उनके थ्रू हम लोग DTs को ऑफर करते हैं. Then Krishna accepts, not our direct offering he accepts. That is also through our spiritual master is accepting. Like the Bhoga offering we do, we recite the Pranam mantra of our Guru. Through him it was offered to the Krishna. Not directly we can do it. So the deity worship also, it's by the grace, the training, the learning we had, we become qualified because of our spiritual master. If he allows us, if he has the mercy on us, permission given to us, then we engage in deity worship. So it's not that we started up at our own. तो वो खुद से इतना effective नहीं हो पाता. So that's why I say, whenever you wanted to have the deities, so take permission from your spiritual master, then तब हम लोग उसको अच्छे से कर सकते हैं. नहीं तो it's not that we are able to do at our own. And that is also happening. Every service where what we do is through the via medium of our Guru. He is a transparent medium. Either it's deity worship, chanting, bhoga offering, anything. Devotional practice is through the spiritual master, your devotee. He accepts, then it was given to Krishna. Otherwise, no. What deity worship is? Offering the bhoga, dressing the deities, bathing them, cleaning them like properly, decorating them, making garlands from them. So it's everything we offer through our spiritual master. By reciting the prayers of our spiritual master, like that we offer to deities. Getting the point, Akshay? We become qualified to do deity worship through our spiritual master only, under his training, guidance. Yes. माता जी, एक और क्वेश्चन। हमने लास्ट वर्स में ही पढ़ा था कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्णा एंड हिज नेम। Yes. तो ये और ये भी देखा था कि नारद मुनि हर जगह घूम घूम के सबको हरि नाम की दीक्षा दे रहे थे। Yes. तो ऐसी कोई जरूरी है कि हमें एक जगह पे बैठ के ही भगवान का नाम लेते रहना चाहिए, या भगवान की मूर्ति के सामने बैठ के ही भगवान का नाम लेते रहना चाहिए? This point you are asking regarding chanting, इसके दो पॉइंट्स बन सकते हैं, दो सवाल बन सकते हैं जो मेरे दिमाग में है. एक तो ये है कि क्या हमें सिर्फ भजनानंदी बन के रहना चाहिए, प्रचार नहीं करना चाहिए, और
एक सवाल इसको मैं ये इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकती हूँ कि यू आर सेइंग कि इफ वी हैव टू चैंट वी हैव टू चैंट इन फ्रंट ऑफ deities और इन फ्रंट ऑफ altar, like what's the question? माता जी एक्चुअली दोनों ही क्वेश्चन है उसमें, आपने बिल्कुल सही गेस किया है। पहला पॉइंट तो ये है कि अगर मतलब जैसा मेरी अंडरस्टैंडिंग अभी तक, अगर कोई बहुत शुद्ध भक्त है तो उसे एक्चुअली प्रीच करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि उसका लश्कर ही ऐसा होता है कि और लोग ऑटोमेटिकली उनके पास अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो उन्हें डायरेक्टली प्रीच करने की जरूरत नहीं होती है। तो उन्हें एक जगह पे बैठ के, मतलब दे आर ऑलरेडी रियलाइज, तो उन्हें एक जगह पे बैठ के चैंट करने की कोई जरूरत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी वो लव, कृष्णा का लव तो ऑलरेडी अपने हार्ट में लेके घूमते हैं, तो उन्हें एक जगह पे बैठने की तो जरूरत नहीं होनी चाहिए। और दूसरा कि जो प्रीच करते हैं कि मतलब उन्हें प्रीच करने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, कि मतलब क्योंकि ज्ञान से प्रेम अनुभव नहीं किया जा सकता। तो एक बार क्या के लिए नहीं किया ज्ञान जा दिया सकता? जाता है रिपीट अगेन। कि ज्ञान के माध्यम से प्रेम अनुभव नहीं किया जा सकता। मतलब यू कांट एक्सपीरियंस द लव ऑफ कृष्णा थ्रू द दैट knowledge about the karma kaand and everything that Krishna already said that in his Bhagavad Gita कि अगर तुम्हें मेरे पास आना है तो तुम्हें समर्पण करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा ज्ञान के But माध्यम से how to मुझे कोई come नहीं to the सीखा। point of surrender until you hear it? हाँ एग्जैक्टली आप बट सुनोगे नहीं तो आपको पता लेकिन कैसे चलेगा कि शरणागति करनी होती है? How you can come to the point of love until you understand the importance of the service, until you understand the वो तो importance of surrender. हाँ हाँ वो तो जब तक आपको मतलब बोला मुझे नहीं उससे कोई जाएगा, बार बार सुनाया प्रॉब्लम नहीं नहीं है। जाएगा, आप में आएगा क्या? नहीं मेरा पॉइंट ये नहीं है। मेरा पॉइंट ये है कि मतलब एक हमें एक जगह पे बैठ के चैंट करने की या मतलब हम तो मतलब जो पागल होते हैं, मतलब उन्हें तो कुछ समझ नहीं आता ना कि वो बैठे हैं कि आपने वो दो कुछ भी कर रहे हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स बोली हैं एक्चुअली। लेट मी से, वन साइड यू आर सेइंग कि एक जगह बैठ के जप करने की जरूरत नहीं है, दूसरे सेइंग यू आर सेइंग कि प्रचार करने की जरूरत नहीं है, तो फिर करना क्या है? नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे प्रचार कर, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो शुद्ध भक्त होते हैं उन्हें प्रचार करने की क्या जरूरत होती है, क्योंकि उनका लश्कर ही ऐसा होता है कि वो दैट इज ऑटोमेटिकली वेरी उनके। ट्रू। लेट मी टेक दिस पॉइंट। आप बोल रहे हो कि जैसे शुभ भक्त होते हैं उनको प्रचार करने की जरूरत क्या, उनके दर्शन मात्र से ही हो जाता है। दिस इज ऑल्सो प्रीचिंग। हाँ दिस इज एग्जैक्टली ऑल्सो प्रीचिंग। यही प्रीचिंग व्हाट यू आर यही मैं बोल अंडरस्टैंडिंग रहा कि था। जा जाके पकड़ पकड़ के तो उनको लेक्चर सुनाना। No. नहीं नहीं, मैं यही बोल रहा था। तो देखिए जो शुद्ध मैं यही भक्त हैं उनके दर्शन मात्र से भी दिस सेशन इज गोइंग टू एंड। अक्षय प्लीज कम अगेन सो दैट आई कैन आंसर योर क्वेश्चन। अक्षय लेट्स टेक इट वन बाय वन। योर फर्स्ट पॉइंट इज कि जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको वो लाइक क्या बोला आपने पहला पॉइंट कि दे शुड नॉट सिट एट वन प्लेस एंड चैंट। उन्हें जरूरत नहीं होनी चाहिए। उनको जरूरत नहीं है चैंटिंग करने की। नहीं, उन्हें जरूरत नहीं होनी चाहिए एक जगह पे बैठ के चैंट कर दे, तो मतलब दे आर ऑलरेडी रियलाइज्ड, तो फिर उनको क्या वो करना है? मेडिटेशन करने की, उन्हें लोगों तक जाना चाहिए और हरि उनको नाम लोगों तक संकीर्तन। जाना चाहिए। Yes, very हाँ good. They should not become Bhajananandi, they are Goshtanandi, and this is the mood we are adopting as Chaitanya Mahaprabhu has given, Srila Prabhupada has given, कि हमें भजनानंदी नहीं बनना है, हमें गोष्ठानंदी बनना है। मगर उससे पहले ये है कि मतलब भजनानंदी इन दी सेंस, फर्स्ट भजनानंदी हम इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं। भजनानंदी देखिए दो प्रकार के भक्त होते हैं। भजनानंदी होते हैं जो सिर्फ अपना ही भजन करेंगे, अपना उद्धार करेंगे, बाकी कहीं बाहर जाके वो रिस्क नहीं लेते। ठीक है, सो ऐसा पहले हुआ करता था। भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी ने यहाँ प्रचार कार्य देखिए, नरोत्तम दास ठाकुर के समय से भी प्रचार कार्य चल रहा था। चैतन्य महाप्रभु ने भी प्रचार कार्य बहुत चलाया। तो जो भक्त होता है वो पहले भजनानंदी बनता है। भजनानंदी इन द सेंस दे बिकम फिक्स्ड फॉर्म इन देयर साधना and then they go out and preach. Like Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, for some years he just chanted sitting at one place. उन्होंने सिर्फ जप ही किया, मगर उसके बाद प्रीचिंग के एक्सप्लोड किया। प्रीचिंग मतलब हरिनाम कहते बृहद मृदंगा मतलब होता है प्रचार का, वो फैलाया। So he preached like anything so that he can go into material world, तो वो उसको इन्फ्लुएंस ना कर सके उनको। So it took that way. So हमारा गौड़िया वैष्णव जो संप्रदाय है, प्रभुपाद has taught us the same principle. चैतन्य महाप्रभु की खुद की इंस्ट्रक्शन रही है, जारे देखे तारे कह कृष्ण उपदेश। तो जहां जो दिखता है उसको प्रचार करो। ठीक है, कहो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। So this is the meaning in the Shad Goswamis. Everybody is telling these things in our sampradaya. We don't have to become Bhajananandi.
तो हमारा जो भक्त होता है जिसके हृदय में कंपैशन है वो बन ही नहीं सकता भजनानंदी। वो क्या है, वो जाके इस हरि नाम का प्रचार करेगा कि कंपैशन है, दया भाव है। सो ही वांटेड दैट टू जनरल मास to become eligible to go back to Godhead. This is a great service, and Krishna himself has said in Bhagavad Gita, those who preach my glories, they are very dear to me. So in our Vaishnava Sampradaya, I don't think anybody is like Bhajananandi, everybody is Goshtanandi. Yeah, Bhajananandi one need to become so that they become fixed in sadhana. In one that sense you can understand, and Goshtanandi, then they go out. Revolutionize within, then revolutionize out. So that was the first one. Yes, what is the next? नहीं, हो गया, इसी में हो गया, इसी में कवर हो गया। एक्चुअली और मुझे एक चीज डाउट आपने भी था बोला कि कि उनको प्रचार करने की, एक्चुअली देखिए जो शुद्ध भक्त है उनके दर्शन मात्र से भी उद्धार होता है। अब जैसे वंशीदास बाबा जी रहे हैं, दीज आर दी वेरी परमहंस आर ग्रेट सोल्स, ठीक है, उनको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने भी प्रचार नहीं किया, प्रचार ऑब्वियसली दोज हु कम टू हिम ही हैज प्रीच्ड देम, बट उनके दर्शन मात्र से भी लोगों का उद्धार हुआ है। So it's like some are like just seeing them, people are like getting purified. They are the Paramahansas. ऐसा है कि शुद्ध भक्तों के दर्शन मात्र से भी शुद्धता होती है। मगर वही मैंने बोला, प्रचार के कई तरीके हैं, या तो दर्शन से करिए या वाणी से करिए, प्रसाद से कीजिए, कैसे प्रचार कई तरीके से हो सकता है। मगर जो वैष्णव है वो हमेशा प्रचार कार्य में होते हैं, बिकॉज दे वांटेड टू सेव ऑल द सोल्स। दिस इज द इंस्ट्रक्शन ऑफ कृष्णा एंड चैतन्य महाप्रभु टू प्रीच द ग्लोरीज. So that is the Vaishnava does. Okay. Yeah. What's your next thing? माता जी, एक लास्ट पॉइंट है। Yes. कि अगर हम नॉर्मली कोई भी डिजायर रखें, मतलब स्पिरिचुअल हो या मटेरियलिस्टिक हो, डिजायर टू डिजायर होता है, ठीक है। और डिजायर अगर है तो वो हमें बांध के रखेगा कहीं ना कहीं। Spiritual desire और नहीं हमें स्पिरिचुअल माता जी अगर डिजायर हो तो वो कहीं ना कहीं तो देखिए, आप डिजायरलेस तो नहीं हो सकते। वो हमारी कुछ तो लिमिट है। आप मुझे ये बताओ, आप डिजायरलेस नहीं हो सकते। अभी फिलहाल तो नहीं हो सकता। But the thing is, we have to transform our desire. When it is a spiritual desire, so that will take you closer to Krishna. But if the material desire, it will bound you. बट एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट मुझे वहां दिखता है जब हम ध्रुव महाराज की, मतलब वो छोटे बालक होते हैं ना, जब श्री हरि विष्णु ने दर्शन देते हैं तो वो ध्रुव महाराज से पूछते हैं कि, नहीं, प्रहलाद महाराज वाली जो है वो स्टोरी है शायद, हाँ, वो प्रहलाद महाराज से जब पूछते हैं तो कि तुम्हारी इच्छा क्या है, तो वो बोलते हैं कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, मुझे कुछ नहीं मांगना। तो जब श्री हरि विष्णु उन्हें फोर्सफुली बोलते हैं तो वो बोलते कि मेरी एक ही इच्छा है कि मेरी कोई इच्छा ना हो। तो मतलब चाहते तो वो मांग सकते थे कि मुझे आपके पास आना, ये वो फलाना ढिमक, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं। बिजनेस विद नरसिम्हा देव, ये एग्जैक्टली वही मुझे कहना है कि हम नॉर्मली एक मोटिव से पीछे चले जाते हैं। उन्होंने बोला था कि आई वांटेड टू बी हियर बिकॉज ये जो आत्मा है यहाँ पे, मैं इनका उद्धार चाहता हूँ, मैं इसलिए भगवत धाम नहीं जाना चाहता। हाँ, ये तो उस सेंस में भी बताया उन्होंने कृष्णा नरसिम्हादेव, डू यू वांट टू हैव समथिंग, तो ही सेज नो। वो बिजनेस हो जाता है कि आपने मेरे लिए इतना किया तो मैं ये करूं। मगर जो स्पिरिचुअल इच्छा, वो इच्छा एक तरह से मटेरियल नहीं है, वो बांधती नहीं है, बिकॉज यू आर लुकिंग फॉर द हायर पर्पस। ही इज नॉट लुकिंग फॉर हिमसेल्फ। इच्छा मतलब अपने उद्धार के लिए बात नहीं कर रहे, वो सभी जीवात्मा के उद्धार के लिए बात कर रहे हैं। तो वो खुद की मटेरियल, वो डिजायर खुद की क्या हुई फिर वो? उस केस में तो वो डिजायर भी नहीं हुई ना, वो तो कंपैशन हुआ। यस। तो हम उसे डिजायर के कैटेगरी में सेग्रीगेट नहीं कर सकते ना। यस। क्योंकि जो भी चीज दूसरों के लिए की जाए या फिर व्हाट यू वांट, कि हमारी स्पिरिचुअल डिजायर भी नहीं होनी चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं चाहता हमारे स्पिरिचुअल डिजायर नहीं होनी चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि हम जो भी करें एक्चुअली वो कृष्णा के लिए हो। मतलब क्योंकि मैंने एक स्टोरी और पढ़ी थी कि जब, मतलब आई डोंट नो कि वो सही है या नहीं, बट उससे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। एक इंसिडेंट था कि क्या होना चाहिए। नहीं, मैं ये कह रहा था कि मैंने एक स्टोरी पढ़ी है, मतलब जो कृष्णा से ही है, जिससे बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलती है कि कैसे हमें कृष्णा के लिए लव डेवलप करना चाहिए। तो मतलब एक स्टोरी है। तो जब कृष्णा द्वारका में थे तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है। तो जस्ट ऐसे ही मस्ती करने के लिए
कि क्या होता है देखने के लिए। तो उन्होंने कहा उनका पेट बहुत दर्द करने लगता है, तो वो कहते हैं कि जब तक मेरे एकदम शुद्ध भक्त के मैं चरणों की धूल नहीं खा लेता तब तक मैं ठीक नहीं होऊंगा। तो This ये is not सारी the story, it was the headache story. हाँ उनको सिर दर्द होता बट था, he wanted to have that dust हाँ of the lotus feet of his हाँ pure. ये स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो वो द्वारका में सबको बता देते हैं, तो मतलब लेकिन कोई तैयार ही नहीं होता, सबको हाँ, लगता सबको है डर हम होता है कि पाप नरक कर में जाए। देंगे। Even Narad Muni didn't give, then the gopis gave. It is the एग्जैक्टली। glorification of the gopis. कि they are for the हाँ pleasure of Lord, they are not even they are not fearful even going to the hell. एग्जैक्टली मतलब यही पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपको डर भी क्यों हो, मतलब वो डर भी नहीं होना चाहिए कि क्या फर्क पड़ता है हम नरक में हो डिजायर का क्या कलेक्टिव पाताल कहाँ में है? हो। इवन देखिए एक श्लोक आता है, अन्य अभिलाषिता शून्यम, कि और कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। वो इच्छा क्या नहीं होनी चाहिए? भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए। लेकिन गोलोक जाना भी तो एक पर्सनल इच्छा है ना, उससे दूसरों का तो कोई फायदा नहीं हो रहा है। हाँ, गोलोक जाना है मतलब कहीं पर भी जाना, वैकुंठ जाना या फिर ब्रह्मलोक जाना या कहीं पर भी, वो तो एक पर्सनल इच्छा होती है ना, उससे उसमें कंपैशन वाला पार्ट नहीं आता ना। यू वांटेड टू गो बैक टू गॉड हेड। देखिए अब ये तो हर एक की इच्छा होनी चाहिए। वैसे हाँ चैतन्य मैं ये महाप्रभु नहीं ने कह रहा हूँ कि ये गलत है। आई अंडरस्टूड योर पॉइंट। चैतन्य महाप्रभु ने तो ये भी कहा है कि लाइक आई एम नॉट डिजायरिंग टू हैव द फेम, वेल्थ एंड ऑल दोस थिंग्स। इवन इफ यू वांटेड टू एक जन्म मतलब जन जन्मांतर हेतु की भक्ति होनी चाहिए। तो ये इच्छा तो हर कोई भक्त करता है कि हेतु की भक्ति हो। तो क्या ये इच्छा नहीं होनी चाहिए? अक्षय, ये क्या है? नहीं नहीं ये नहीं कह रहा हूँ मैं, बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब उससे तो उसका फायदा ही होगा, मतलब उसको अपने उसका कुछ भी अपने नहीं भगवान से होगा। मिलना, वो कोई सेल्फलेस नहीं नहीं सेल्फिशनेस है? बिल्कुल उसमें कुछ मतलब मैं कुछ गलत है ऐसा कुछ कह ही नहीं रहा हूँ, मतलब मैं बस डिस्कस करना चाहता था, मतलब नहीं, उसमें you don't गलत want to सही keep का the कुछ desire, पॉइंट ही नहीं that's आ up रहा to you, but we have the desire. है। नहीं जब मैं तक ये भी नहीं इम्पेटस बोल नहीं रहा है कि आप कैसे? डिजायर अपना कर देखिए अगर भगवत धाम जाने की नहीं इच्छा बोल भी रहा। है तो भक्त को पता है कि भगवत धाम जाने का सही तरीका क्या है और आसानी से जल्दी से कैसे जा सकता है, सर्वेंट ऑफ सर्वेंट बन के। हाँ तो बिल्कुल। उसमें वो आई जाती है जीव दया, हम्म। अंडरस्टैंडिंग। मतलब एक एक दूसरी से चीजें इतनी ज्यादा इंटरलिंक्ड है कि अगर एक चीज करो तो ऑटोमेटिकली दूसरों चीजों का यस, फायदा अपने तो आप देखिए आ जब तक जाए। हमें वो इम्पेटस नहीं है भगवत धाम जाने का, सॉरी वन सेकेंड, ये भगवत धाम जाने का इम्पेटस नहीं है हमारे पास, सो वी डोंट एंगेज इन डिवोशनल सर्विस। सो वो होना चाहिए। एक्चुअली प्रभुपाद ने ये ट्रिक किया था हमें। तो प्रभुपाद देखिए भौतिक जगत में क्या होता है ना, जब तक कुछ ऐसा बताया नहीं जाए आपको ये मिलने वाला है तो कोई भी कुछ करता हाँ नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद करता ने नहीं, बोला देखिए हमारा एग्जैक्टली जो मेन गोल एग्जैक्टली। है दैट इज टू अटेन लव ऑफ गॉड हेड, नॉट टू लाइक इवन गोइंग टू बैक टू गॉड हेड। वो भी गोल नहीं है हमारा। ठीक है, गोल क्या है? टू अटेन द लव ऑफ गॉड हेड। मगर प्रभुपाद ने ऐसा करके हमें ट्रिक किया, बोले कि भाई देखो आप भक्ति करोगे आप भगवत धाम जा पाओगे। फलश्रुति बताई हमें कि भगवत धाम जा सकते हो भक्ति करके, जन्म मृत्यु के साइकिल से हट सकते हो। देन से अरे हाँ फायदा तो है, कुछ तो फायदा है। देन सो दैट पीपल विल टेक अप। मतलब एक तरह से इट्स अ ट्रिक इन वन सेंस, मगर द हिडन मीनिंग इज टू अटेन लव ऑफ गॉड हेड। अब किसी भी शुद्ध भक्त को पूछोगे, जस्ट होल्ड ऑन, हरे कृष्णा। सो आई वाज टेलिंग अक्षय दैट ये भी एक ट्रिक है। अल्टीमेट गोल तो क्या है? प्रेम भक्ति। जो शुद्ध भक्त होते हैं उनसे पूछोगे ना कि क्या गोल है, दे वर सेइंग टू अटेन प्रेम भक्ति, प्योर लव ऑफ गॉड हेड, दैट इज द गोल। तो गोल तो असल में वो है, मगर हमें थोड़ा कैंडी कोड करके बताया जाता है भगवत धाम जाना है। ताकि एग्जैक्टली हम मेरा भौतिक पॉइंट वाले वही भौतिक था। जगत के लोग हैं आप ना, इतना जो हमें जब तक फलश्रुति नहीं पता चले तो हम प्रेम क्या अटेन करना है, व्हाट इज दिस, वी डोंट अंडरस्टैंड। बट एक बार जब भक्ति में आ जाते फिर हम समझ पाते नहीं, टू अटेन लव ऑफ गॉड, उसके लिए यहाँ भी रहना पड़े, डजंट मैटर। देखिए वैष्णव के लिए वो भौतिक जगत में रहे, भगवत धाम जाए, यहाँ भी सेवा करनी वहां भी सेवा करनी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अंडरस्टूड? एग्जैक्टली वही वही मेरा पॉइंट था, आपने जो लास्ट में कहा ना वही मेरा पॉइंट था। यस, और यही इंग्लिश के चीज है। वर्ड इतने लिमिटेड है ना, इंग्लिश के वर्ड बहुत लिमिटेड है, वो एक्सप्लेन मगर ही नहीं देखिए कर वही सकते चीजों भौतिकवादियों को अगर थोड़ा समझाना, उनको अट्रैक्ट करना, तो बोलना पड़ता है ना फिर थोड़ा भगवत धाम जाना है। को। एग्जैक्टली देखिए वो तो दैट्स बाय कंप्लीट। डिफॉल्ट हम लोग जाएंगे ही जाएंगे। आप प्रेमा भक्ति अटेंड करोगे, बाय डिफॉल्ट यू विल गो बैक टू गॉड। हाँ उसके लिए अलग से वो डिजायर रख के हम खुद को खुद से बांधने की जरूरत नहीं होती, बस यही कहना था मुझे। आपने जो लास्ट में कहा ना बस बस उतना ही कहना था। That the goal is to attain love of Godhead, and for that we just have to keep on serving Lord without any motivation or anything.
Just keep on selflessly to the Lord, render services, you will attain love of Godhead. अब उसके चक्कर में आप यहाँ चाहे भौतिक जगत में रहो, चाहे वहां रहो, सेवा करनी है, आप सेवा जहां भी करो, ठीक है? Understood the point? यस बात है। Okay. ज्यादा इंटेंस तो नहीं हो गया ना? हाँ, मैं ज्यादा इंटेंस तो नहीं हो गया ना? क्या कहा आपने? तो मैं ज्यादा इंटेंस तो नहीं हो गया ना? मतलब मुझे कॉन्ट्रेडिक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि जब तक मैं कॉन्ट्रेडिक्ट नहीं करूंगा वो पॉइंट्स Make sure, I just wanted to say, make sure when you make a statement that you don't get offensive. क्योंकि ना मुझे ऑफेंस करना ही नहीं। फर्स्ट टाइम यू आर टेलिंग कि वैष्णव को प्रचार नहीं करना चाहिए या ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं मुझे ये नहीं करना था, बिकॉज इट माइट गेट ऑफेंसिव, सो बी वेरी केयरफुल व्हाट यू आर सेइंग। ओके, नहीं मैं ये मेरा एक्चुअली आपने वो क्वेश्चन कन्वे नहीं हुआ, तो मुझे ये कहना था कि आई एम सेइंग कि जो भी आप कहते हो या कन्वे करना चाहते हो, so be very careful about it, what you are going to say. First think about it, what you are going to say, and then speak. मेरा तो कहना यही था कि उनका काम ही प्रचार करना होता है। Yes, ये कहना चाहिए। उन्हें एक जगह, उनको एक जगह पे बैठ के रहने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी सेल्फ रियलाइज्ड सोल होते हैं। उनका तो काम ही है लोगों के पास जाना और उनका उद्धार करना। ये मेरा पॉइंट था एक्चुअली। Yes, but you said in a different way, so that create little contradictions. So that's वो confusion हो गया वहाँ पर। Yes, so that's what I'm saying. कि whenever you wanted to say, just think about it what you are saying, so that you don't get offensive. Because जाने अनजाने में फिर कहीं अपराध कर जाते हैं तो वो गलत हो जाता है। So be very careful. इसलिए मैं कह रहा था कि ज्यादा इंटेंस तो नहीं हो गया मुझे, लगता है वो कभी-कभी हो जाता है। It's okay. So that's what I'm saying. Whenever you wanted to say something or something, just be careful what you are saying. Think about it first, and that's it. Okay. The point was not wrong what you were saying, but be very careful. Otherwise, it might get a little offensive at some point. Okay. Yeah. Thank you, Akshay, for your points. Yes. और किसी को कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा. Okay. Okay, then we will be. आज तक कुछ कहना है तुम्हें? माता जी, मैंने मराठी क्लास में ना यही क्वेश्चन एक पूछा था कि लाइक हम महाप्रभु कहते हैं कि हमें बार बार ही भक्ति कर, मतलब हमें बस भक्ति करनी चाहिए, मतलब वो क्वेश्चन एक्चुअली महाराज ने थोड़ा गलत वे में समझ गए थे, इन द सेंस कि मतलब मैं उनको कह रही थी तो महाराज वो मतलब मेरा तरीका ही गलत था बताने का एक्चुअली में। तो एक्चुअली तो वो क्वेश्चन वो ऐसा हो गया था कि मतलब मैंने उनको पूछा था कि महाराज हम एक टाइम में बोलते हैं कि हमारा गोल है बैक टू होम, बैक टू गॉड है, और फिर एक जगह पे हम पढ़ते हैं कि हमें सिर्फ भक्ति करनी है, हमें ये भी डिसाइड नहीं करना है कि हमें गोलोक ध्यान है। तो ये क्वेश्चन का तरीका ही अलग हो गया था मेरे पूछने का ना। तो महाराज इसको ऐसे समझे थे कि वो जो बैक टू गॉड हम जाते तो है, लेकिन जैसे वो कुछ थे कि जैसे उन्होंने मुझे इसका आंसर ऐसे दिया था कि मतलब आप समझ जाओगे तो क्वेश्चन में आंसर बताते उनका। उन्होंने कहा था कि एक है कि हम जेल में पड़े हैं, एक एग्जांपल दिया था कि हम एक जेल में हैं, और एक है कि हम उसके बाद जेल से निकलने के बाद में हमें पोजीशन मिल गई जेलर की, मतलब जेलर की। तो ये 2 अलग अलग डिफरेंट सिचुएशन है। तो उन्होंने मुझे ऐसे समझाया। माता जी मैं ऑडिबल हूँ? आपकी आवाज आ रही है आस्था? या सो उन्होंने मुझे ऐसे समझाया था कि लाइक जैसे एक जेल हम लोग जेल में कैदी की तरह बंधे हुए हैं पहले। एक ये कंडीशन है, हम मतलब ये बहुत मतलब फेस किया। उसके बाद में निकलने के बाद में फिर वापस लाइक आपको मतलब वापस नहीं, मतलब आप उसके बाद जेलर बन के आ गए, मतलब आप वहाँ के देख रेख कर, मतलब लाइक हेड टाइप नो, लाइक जेलर बन के आ गए। तो ये 2 डिफरेंट सिचुएशन है उसमें। तो वो ऐसे समझा रहे थे कि जब यदि कोई ग्रेट डिवोटी यदि वापस जैसे आते हैं वो मतलब यदि वो वापस आ रहे हैं, लेकिन वो लाइक प्रीचिंग की तरह, ऐसे उन्होंने मुझे एग्जांपल से तो समझाया था। फिर वो एक्चुअली क्वेश्चन बहुत मोल्ड हो गया था मेरा, तो फिर मुझे लगा कि फिर महाराज खुद ही बोले कि मुझे लगता ही नहीं कि तुम मेरे आंसर से सेटिस्फाई हो करके। So I don't know, but I'm just saying that whenever you put a question, so think about it first and phrase it in a nicer way, so it won't be offensive and it will be clear to other person. Okay. So माता जी मैं कहना चाह रही थी कि जो महाराज ने आंसर दिया, क्या आप उसको मुझे क्लेरिफाई कर पाओगे, लाइक करोगे, मतलब ऐसे कि महाराज जैसे जवाब दे रहे थे
कि हम जैसे अभी जेलर, मतलब वो कह रहे थे कि एक कंडीशन है कि हम जेल के कैदी हैं, उसके बाद निकलने के बाद में हम हमको पोजीशन मिल गई कि हम जेलर है, तो ये 2 डिफरेंट सिचुएशन हो गई ना यस, जेल पहले। के अंदर है, जेलर है तो वो मतलब एक तरह के गवर्नमेंट का क्या है, भेज रहे एम्प्लॉयड हैं पर्सन हम। है, ठीक है। सो इट्स लाइक अ, देखिए दैट इज लाइक अ प्रीचर, ठीक है। वही वही महाराज वही बता रहे थे कि प्रीचिंग करने के लिए फिर आप जेलर बन के आ गए हो, और फिर यस, जेल जो है वो भोग रहे हो, मतलब मगर आत्मा वो के तो जैसे भौतिक वो। जगत में ना, मगर जेलर इज लाइक ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लॉर्ड, सो इवन इट सीम्स लाइक ही इज इन अ हाँ मटेरियल वर्ल्ड, ही इज नॉट इन अ मटेरियल वर्ल्ड बिकॉज़ ही इज अ, मतलब ये एक तरह से वो भौतिक चीजों से इन्फ्लुएंस नहीं होता, क्योंकि वो प्रचारक है तो वो गवर्नमेंट के अंडर है ना। इसका मतलब ये नहीं कि वो जेल के अंदर है, उसको जेल के अंदर जाना पड़ता है प्रचार करने के लिए, तो मगर ये नहीं कि वो बद्ध होता है वहां पे, ही इज ऑलरेडी लिबरेटेड। तो ये कहने का मतलब ये था महाराज, अगर मैं समझ पा रही हूँ कि जो वैष्णव होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, वो लगते हैं भौतिक जगत में है, मगर भौतिक जगत में नहीं होते, क्योंकि यहाँ भी सेवा कर रहे हैं वहां भी सेवा करेंगे। हाँ। गेटिंग द पॉइंट आस्था? यस माता जी। जब जेल के तो अंदर फिर हो वही तब आप तो। बद्ध हो, ठीक है। तो जब एक पोजीशन आप जेलर की अटेंड करते हो मीन्स यू आर गेटिंग फ्री फ्रॉम द जेल। अब उस जेल से तो निकल चुके हो नाउ, अभी आपको बाकी जेलर्स को भी फ्री करवाना है। या तो like by यस, preaching to them, जैसे I can प्रभुपाद make का it एग्जाम very मतलब let me, I जैसे don't know what था to ना है। calculate about it, so maybe you can clear from the नहीं वो वही था, मतलब क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरा क्वेश्चन एक्चुअली, फिर महाराज मुझे आखिरी में मुझे मुझे बोलते हैं कि आई आई नो, लाइक आई एम फील लाइक यू आर नॉट सेटिस्फाइड। महाराज को पता नहीं अपने आप ऐसे पता चल जाता है, तो महाराज कहते हैं आई नो यू आर नॉट गले की सेटिस्फाइड पता विद चल माय जाएगी, क्या आंसर। समझ में आया होगा। महाराज खुद ही कहते हैं आई नो यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर, Okay, so लाइक। it's getting late actually, मेरा थोड़ा ऑफिस का काम भी है इन दिनों, so I'm little busy with my office work also, और मुझे वापस घर भी जाना है। I'm here actually, मैं यहाँ पे आई हूँ in Jammu, I'm here because yesterday I came for the program, so I have to go back to my home also, so it's a travel and I have to chant also my rounds, so much things to do, so we'll finish up here, so इसलिए मैं कल थोड़ा क्लास ले नहीं पाई, I'm literally sorry about it, कि कल काफी लेट हो चुका था, so I wasn't able to, I'm really sorry about it, so अभी के लिए यहीं खत्म करते हैं, कुछ होगा so please ask in the evening time, so then I will take it. Okay, so let's chant 3 times Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Grantha Srimad Bhagavatam ki jai, Sri Prabhupada ki jai, all the Samvadi devotees ki jai. Thank you so much. See you all in the evening time for the Bhagavad Gita class. Hare Krishna, everyone.